الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الابتهي الاتهامي السید البہی السراج المضی الکوكب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ. صلوات پر محمد. ثم الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر فاتح بدر و حنیر و خیبر قاتل مرحب و انتر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب. اللہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لله وانا اليه راجعون. برادران عزیز، استاد محترم کا حکم تھا، لہذا پڑھایا تو نہیں ہے، لیکن جو اس مرتبے پر فائز ہوا کرتا ہے تو ہمیشہ وہ اسی کی منزل میں آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی پڑھائے بھائی استاد ہو. اگر کوئی کانٹوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے، برائیوں سے نکال کر نیکی کی طرف لاتا ہے، وہ ہمیشہ استاد ہوا کرتا ہے. آج بہت لمبی تاریخ ہے اور افسوس ہمیں کرنا چاہیے کہ آج کا جلوس بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ ہوتا تھا، مگر کیا کرے، کچھ وجہ ہے، کچھ سبب ہے. لیکن پھر بھی جو عزادار یہ آئے ہوئے ہیں، جناب سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، کس کا؟ اس کے غریب لال کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. عزیزان گرامی، رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آپ جب بھی پرشیدہ پر بیٹھتے ہیں نا، آپ نہیں اس وقت روتے ہیں، آپ پرشیدہ پر فقط نہیں بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں یہاں ایسی ایسی ہستیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کے پہلو میں بیٹھ کر حسین کو پرسہ دیتی ہیں. کہتے ہیں آسمان سے ملک چل کے خود آتے ہیں فرشیدہ پر بیٹھنے کے لیے. آپ خوشا نصیب ہے کہ آپ کو فرش عزا ملا، اور ہمیں اور غور کرنا چاہیے. ہمیں ہماری جانیں فرش عزا پہ قربان ہیں، ہمیں فرش عزا جیسی نعمت ملی. آپ جب اس فرش عزا پر بیٹھ کر روتے ہو، فخر کیجئے گا اور رونے میں کوتاہی نہ کیجئے گا. سوچئے گا، کہتے اس فرش عزا پر جب آپ بیٹھ کر روتے ہو نا، تو کہتے فقط آپ نہیں روتے ہو، کہتے 4 سال کی مطلوب بھی آ کے روتی ہے. کہتے ہیں وہ بیوی بھی آتی ہے کہ جس کی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے اور آ کے روتی ہے، اور وہ بچی جب روتی ہے تو روتے روتے پھپھی اماں سے سوال کرتی ہے، اماں ذرا یہ بتاؤ یہ رونے والے کون ہے؟ جب روتا ہوا دیکھتی ہے تو روتا ہوا پوچھتی ہے، کہتی پھپھی اماں ذرا بتانا یہ جو دہاڑے مار کر رو رہے ہیں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو بے ساختہ پھپھی اماں کہتی ہے، میری بچی یہ تیرے بابا کے عزادار ہے. تیرے نانا نے فرمایا تھا، تیرے بابا کے نانا نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا کیونکہ تیرے جوان پہ جوان روئیں گے، تیرے بزرگوں پہ بزرگ روئیں گے، تیری عورتوں پہ تیری عورتیں. اجرکم علی الزہرا. آواز گریہ آپ کے بلند ہو گئے، خدا آپ کو سلامت رکھے. آج کس کو پرسہ دینا ہے؟ ہم شبیہ پیغمبر 18 سال کی کمائی جناب زینب کی ہے، ام لیلہ کی بھی ہے. بڑی حسرت سے ماں پالتی ہے. جب بچے کو ماں جنم دیتی ہے تو بڑی تمنائیں لگاتی ہے کہ یہ بچہ جب جوانی پہ آ کر کھڑا ہوگا تو نہ جانے کیسے کیسے ارمان دل میں تھے. مگر کہتے علی اکبر جب خیموں میں واپس آئے نا اور کہا کہ بابا مرنے کی اجازت دے دو، جب جیسے اجازت طلب کی نا تو حسین نے ہر مرحلے پر تحمل کیا، روکا. ہر انسان اس سے پہلے خدمت میں آیا، آقا مرنے کی اجازت دو.
मौला ने तहम्मुल किया, रोका, क्या तुम जान अपनी कुर्बान करके क्या करोगे, मैंने तुम्हें रिहा कर दिया, जाओ चले जाओ, मगर मौला के अंसार पर, हमारी असहाब पर जाने कुर्बान है। कहते मौला जिए है तो आपके सदके में, मरेंगे तो आपके सदके में। जब अली अकबर हाथों को जोड़ कर आए, मौला का बाबा मरने की इजाजत दे दो, जैसे इजाजत तलब करना था तो कहते मौला ने तहम्मुल नहीं किया, इंतजार नहीं किया, कब तकद्दमा या बनैया, जाओ मेरे लाल शौक से जाओ। अब अली अकबर कहते जैसे ही तैयार हुए, चलना चाहते हैं, कुछ मरहले तक चले, जैसे ही घोड़े के करीब पहुंचे हैं, मौला ने कहा अली अकबर पर मैंने इजाजत दी है, अरे 18 साल जितने चक्की पीस के पाला है, क्या उस माँ से नहीं मिलोगे मेरे लाल? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा किसी को गम ना दे सिवाय गम मजलूम में करबला की आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद है, रोइएगा, रोने में कोताही ना कीजिएगा। मेरा मौला फरमाता है जब भी हमारे शहदा पर, जब भी हमारे माजाए के मसाइब बयान हो तो रोने में कोताही न करना, कभी बुख्ल न करना। तो कैसे रोना का मौला फरमाता, चौथे इमाम का कौल है मेरा मजलूम, ऐसे रोना जैसे जवान बेटा जब माँ के आगे गुजर जाता है, जनाजा तैयार होता है, कहते जनाजा उठ के चलता है ना, माँ चीखे मार मार के रोती है और कहती है ये मेरा सहारा था, अरे जिसके सहारे में जी रही थी, अरे ये दुनिया से चला गया, बताओ मैं किसके सहारे? खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे मजलूम करबला के, जो आंखें इमाम हुसैन के गम में रोती है वो आंख रोज़े महशर रोती नहीं। आप याद रखिएगा, आप फरशेदा पर बैठे हैं तो कभी रोने में बुख्ल ना कीजिएगा। आप मुसलसल 2.25 महीने रोते चले आ रहे हैं, मगर आप कभी कभी खामोश हो जाते हैं। जरा करबला का रुख करके देखो, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद से पूछो, जब भी रोते हैं शिविर का ताज़ियाना। अजूरी को बड़ा सहारा, खुदा कोई गम ना दे, अजूरी बड़ा सहारा, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे मजलूम में करबला के। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई, ऐसा रोइएगा कहते आसमान से जाके आपकी आवाज़ें टकराना चाहिए। रोने में जब पीछे कोई आँख रोती है, उस सामने जनाब सैयदा खुद बनती है कि मैं उसकी शफाअत करूंगी जो मेरे लाल पे रोएगा जब मेरे लाल की बारी आए। खुदा कोई गम ना दे, ताकत आप खुदा खुदा यहाँ फरशेदा पर आकर बैठे हैं, कहते हम शबीर पैगंबर जब कहते इजाजत लेकर चले, मौला ने तामुल रोका, काली अकबर पर मैंने इजाजत दी है, चक्कियां पीस के 18 साल जिसने पाला है, क्या उससे आखिरी बार नहीं मिलोगे? अली अकबर फुफी अम्मा के खैमे में आए और आने के बाद कफी अम्मा, हाँ मेरा लाल क्या बात है? देखो माँ जब बेटे को पालती है तो उसकी कुछ निशानियां हुआ करती है, किबला बैठे हुए हैं, कहते उसकी कुछ निशानियां माँ जान जाती है कि बेटा क्या मांगने के लिए आया है। अली अकबर खैमे में जो कहते जैसे ही जनाब ज़ैनब के पहुंचे हैं, माँ समझ गई अली अकबर क्या मांगने के लिए आए हैं, मगर फिर भी कहते बेटे से सवाल क्या, बोलो मेरा लाल क्या बात है? कहते अली अकबर ने जैसे माँ को देखा और देखने के बाद कहा फुफी अम्मा, कुछ देर अली अकबर जाने से पहले आपके जानिए पे आराम करना चाहता है, क्या इजाजत है? हाँ मेरे लाल, बड़ी तमन्नाएं देकर माँ पाती है। जनाब ज़ैनब ने अली अकबर को कहते सानू पर लिटाया, अभी कुछ देर अली अकबर ने आराम की थी तो एक मर्तबा कहते चौक पर ख्वाब से उठे और उठने के बाद का फुफी अम्मा जरा बताए दादी फातिमा अफजल है या आप अफजल है? आप जुमला आपके हवाले कर रहा, रोने में कोई बुखला ना कीजिएगा। कहते जैसे इतने सवाल किया, अरे जनाब ज़ैनब तड़प गई, 4 बरस की जनाब ज़ैनब थी जब माँ का साया सब छोड़ गया था, भतीजे की सवाली नाम सुना, काली अकबर क्या चाहते हो? अली अकबर ने रोक के कहा फुफी अम्मा, अगर रोज़े महशर दादी फातिमा ने पूछ लिया ज़ैनब मेरा लाल हुसैन करबला के मैदान में अरे को तनहा लड़ गए आधा में था, तेरा अली अकबर 18 साल बड़ी साथ है, ये मुकद्दस साथ है, इन पर कभी रोने में कोताही न कीजिएगा। खुदा ने खुद वादा किया है जो जो रोता है। आपकी आवाज़ें गिरना बुलंद हो गई, आपको खुदा कोई गम न दे। ये आके जो इमाम हुसैन के उनके बेटे पर रो रही है, खुदा इन आंखों में कभी कोई आंसू ना आए सिवाय गम मजलूम में करबला के। अब सुनते हुए चला जिंदाने गिरामी, आप रो तो रहे हो, आप ये जरा तसव्वुर करो फरशेदा पर बैठे हो, आपके कोई तमाचे तो नहीं मारता, आपको कोई भूखिया तो नहीं देता,
आप पर्शदा पर बैठे हो, आपको कोई घुड़कियां तो नहीं देता, आपको कोई तमाचे तो नहीं मारता, मगर जरा करबला का रुख करके देखो, 4 साल की बच्चों जब भी रोती है अपने अम्मू को याद करके रोती है, अपने बाबा को याद करके रोती है। शिमर का ताजियाना है और उसके बाद मरना है। कहते बीमार इमाम है, कहते सारे अगरबा शहीद हो गए, एक जवान मौजूद है, हाथों में हथकड़िया है, पैरों में बेलिया है। शिमर का कहते ताजियाना है, बहन के तमाचे पड़ रहे हैं, आंखों से बीमार देख रहा। खुदा कोई गम ना दे, सवाल समय मजलूम में करबला के साहिब औलाद बैठे हुए तजुर्बा कीजिएगा। आप जब मसाइब सुनकर घर जाइएगा तो बच्ची से प्यार करके पूछिएगा, और आपके हाथ में बच्चों को जब कोई लाता है कलेजा हिल जाता है। बहनों को भाइयों से बहुत प्यार हुआ करता है, और बेटियां बाप को ज्यादा चाहती है, मगर कहते हैं जब वो बच्ची रोती थी का ताजियाना आगे लगता था। अब जुमला देखिएगा दीदारे ग्रामी, जब भी रो तो ऐसे खुल के रो। मेरा इमाम फरमाता है जैसे एक बूढ़ी माँ जवान बेटे के मरने पर रोती है, जवान बेटे के मरने पर अभी शमी अली अकबर कहते बरामद होगा, 18 साल की कमाई है, हम सभी है पैगंबर की कुर्बानी आज है। आप मसाहब को सुनिए दीदारे मोहतरम, खुदा कोई गम ना दे। अली अकबर तैयार हुए, मैंने सारे मसाहब को छोड़ दिया। अली अकबर तैयार हुए, कहते मख्तल की जानिब चले हैं। जैसे ही कुछ दूर चले क्या देखा कि पीछे से आहट महसूस हो रही है। अली अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, बाबा पीछे आ रहे हैं। अली अकबर ने अपने रहबार को रोका, रोकने के बाबा के करीब आए। बाबा आप तो रिहा कर चुके थे, बाबा आप इजाजत दे चुके थे, बताओ जरा पीछे आने का फिर क्या सबब है। जैसे इतना पूछना था, कहते मौला ने कहा अली अकबर जब तुम साहिब औलाद होते या तुम उस मरहले तक पहुंचते, मुझे मालूम है तुम्हें कुर्बानी पेश करनी है। अगर उस मरहले तक पहुंचते या तुम्हें उम्मीद होती तो वो सवाल न करते कि बाप जवान बेटे को रुखसत करने के बाद पीछे क्यों आता है। अब जैसे इतना कहना था, अली अकबर ने कहा बाबा मेरे सारे मसाब छोड़ दिए, आपकी आवाज इतनी बुलंद है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, अभी आप अभी ज़रूरत अली अकबर ताबूत की ज़ियारत करेंगे। कहता इमाम हुसैन फिर रवाना किया। अली अकबर कारज़ार में पहुंचे। कहते अली अकबर जैसे पहुंचे ना, आप सारे मसाब को सुन चुके हैं, जरा सुनिएगा। अब कहते हैं अकबर मैदान कारज़ार में पहुंचे हैं, इमाम हुसैन एक टीले से ये मंजर देख रहे हैं। माँ खड़ी है, कहते जनाब ज़ैनब खड़ी हुई है, टिल्ले ज़ैनबिया पर जनाब ज़ैनब खड़ी है, माँ भी है, बाप ये मंजर देख रहा है। अली अकबर जंग कर रहे हैं, कहते ऐसी जंग कर रहे हैं जैसे उन्हें बाबा ने मुतदा किया करते थे। अब तारीख में मिलता है, कहते नाम गिरामी पहलवान अली अकबर के जब सामने आया है तो अली अकबर के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। जैसे इमाम देखो वक्त का इमाम है, मौला सब जानते हैं अली अकबर का चेहरा क्यों मुतगय्यर हुआ। जैसे इमाम हुसैन का जब चेहरा मुतगय्यर हुआ, कहते माँ ने देखा है, एक मरतबा कहा वालियो वारिस जरा बताना, अरे मेरे लौर की तो खैर है, जरा मुझे बताइएगा। कहा ज़ैनब जाओ लैला से कहो, अली अकबर की माँ से कहो, माँ की ज्यादा दुआ कबूल होती है कि बेटे के हक में दुआ करे। अब कहते लैला जैसे खाने में आई है, कहते दुआ करना शुरू किए, परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथों को उठाया, अभी दुआ कबूल नहीं हुई थे, अभी दुआ कबूल में रोने में गोता है ना। मेरी माँ बहने सुने जुमला, कहते 18 साल की जब कमाई हो तो कहते कहते जब जुदा हो तो दिल पर क्या बीतती है। तारीख मिलता है, कहते जैसे माँ मुसल्ले पर बैठी है, अली अकबर वापस आए हैं। जुमला सुनिए गाज़ीदार गिरामी, अली अकबर वापस आए, वापस आने के बाद कहते मौला के करीब खड़े हुए, वक्त का इमाम जानता है अली अकबर क्या कहने आए हैं। एक मरतबा इमाम ने कहा बेटा मेरे अली अकबर मेरे लाल हम सब ये पैगंबर, देखो कोई ऐसी ख्वाहिश ना करना जो तेरा बाप इस वक्त पूरा ना कर सके, क्योंकि तेरा बाप इस वक्त इतना गरीब है कि कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मगर अली अकबर ने पानी का सवाल किया, बाबा 2 घूंट पानी मिल जाए तो इन जालिमों को बता दो कि हाशमी खानदान के शेर किस तरह जंग करते हैं। हाँ तुम्हारी शुजाअतों को सलाम अली अकबर, मगर ये सब्र का मरहला है। अली अकबर अपनी जबान में भी तंग में बड़ा आयतों के जुमले हैं, मौला ने दूसरी भी कहा है
मौला ने कहा बेटा अली अकबर अपनी जबान मेरे दाहिने में दे दो, शायद कुछ सुकून मिल जाए। कहते अली अकबर ने जैसे ही अली अकबर ने बाबा के जहन में था, अपने जहन में अपनी जबान को डाला, फौरन खींच लिया। आपने मसाज सुने हैं, कहते जैसे खींचा रहा है एक माता रो के कहा बाबा बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़ चुके हैं, आपकी जबान में कांटे पड़ चुके हैं। अपने अली अकबर ने जैसे कहा मौला ने रुखसत कर दिया। अब रुखसत करके मौला कहते जैसे अली अकबर कारजार मैदान में पहुंचे हैं, तारीख समझता है ऐसा नैजा कौन कि मैं सारे मसाज छोड़ दिए, तफसील में नहीं जाना। कहते जब कहते अली अकबर की सीने में बच्ची का फल लगा है ना, तो कहते घोड़े से जब जमीन पर आए हैं तो आवाज दी है ना कि अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, बाबा मेरी मदद को आइए। हुसैन दौड़े हुए अली अकबर के लाशे पर ऐसे पहुंचे हैं, कहते जैसे 6 महीने का बच्चा चलकर माटी आ माँ की आगोश में जाता है। कहते मौला की आंखों की बीनाई चली जा चुकी है, आप अभी शम्य पैगंबर की ज़ियारत करेंगे। कहते जैसे ही मौला अली अकबर के सराहने पहुंचे, देखा कि अली अकबर एक सीने पर हाथ रखे हुए हैं, एक हाथ से जमीन करबला पर है, एक ने अपना हाथों को झुका, मौला को सुझाव नहीं देता। मौला ने अपने अंदाजे से अपने सरहाने से देखा अली अकबर सीने पे हाथ रखे हुए हैं। तो मेरा लाल जरा परेशानी बताओ कि सीने पे हाथ क्यों रखे हुए हो? का बाबा बच्ची के भी सीने में टूट गई है, जब भी मैं सांस लेता हूँ ना तो बहुत करकती है बाबा, बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब तारीख का जुमला सुनिए, कहते जैसे इतना बयान किया, कहते मौला ने कहा अली अकबर परेशान ना हो, अभी तुम्हारी परेशानी को दूर करता हूँ। कहते मौला ने हकीमों को चढ़ाया, चढ़ाने के बाद कहते हैं अली अकबर के कलेजे में बच्ची के पल को डाला, हाथ को डाला है। तारीख में मिलता है जैसे ही पल को खींचा अली अकबर का कलेजा निकल आया। अजर अल्लाह ज़ियारत कर रहे ना, कहते आलम मुबारक आया है, और ये आलम मुबारक किसकी पहचान है? कहते गाजी अलंबरदार की पहचान है। कहते जिस वक्त मौला इजाजत मांग कर इमाम हुसैन से चले थे तो मौला ने कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं फर्ज पे लिखा हुआ था और इन्ना लिल्लाहि नस्रुन मिनल्लाहि व फतहन करीब को काटा का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार इसलिए आगे चल रहा है। अब जब ये पैगंबर की कहते हैं, कहते जैसे ही ताबूत की आप ज़ियारत करेंगे मौला आपको कोई गम न दे। कहते अली अकबर का कहते रूह परवाज़ जन्नत को कर गई। कहते जवान बेटा है, सही बाप है, कहते सही बाप से जवान का लाशा नहीं उठता। एक मर्तबा बनी इज्जत के बच्चों को कहते मौला ने आवाज दे, अरे जवान बेटा है, सही बाप से जवान बेटे का लाशा नहीं उठता। और बनी इज्जत के बच्चों, अरे सही बाप के उठवाने में लाशा मदद करो। कहते खैमों में लाशा आया तो आराम बताओ वाली अकबर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नज़म बतजाई भी तस्लीमन लहम। परवरदिगार उसे को कबूल फरमाए।